start today's session. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So let us solve again the examples on two parameters using DUIS. DUIS क्या है? Differentiation under integral sign. So this is the integral 0 to infinity cos lambda x upon x e raised to ax minus e Good raised morning, to sir. dx. Okay. So this is your integration. Now there are three parameters here. One parameter is lambda, other parameter is a, and third parameter is b. But we have to consider only a and b as a parameter. Don't consider this lambda as a parameter when you are applying DUS. So either you can use a or b as parameter, but don't use lambda. Why it is so? Because लैम्डा को यूज करने से बाकी सब ठीक रहेगा, मैथमेटिकली ठीक रहेगा, लॉजिकली भी ठीक रहेगा, पर आंसर नहीं आएगा. Therefore, you have to use either A or B as a parameter in this integration. So I have used A as a parameter. So you write the integration in terms of A. I of A is equal to 0 to infinity cos lambda x upon x. Sorry, मेरा मिस्टेक हुआ यहाँ पे. Don't use lambda as a parameter. Okay. A से भी आंसर आ सकता है, B से भी आंसर आ सकता है. So let us see how to get this answer. So I dash A is equal to d upon dA integration 0 to infinity cos lambda x upon x e raised to minus ax minus e raised to minus bx into dx. Apply DUIS. What does DUIS mean? This integration sign and integration sign, differentiation sign and integration sign are interchangeable provided you have to take partial derivative inside and this limits, that is 0 to infinity, does not depend on a. अगर इसमें a का कोई फंक्शन होगा तो क्या करना है वो बाद में देखेंगे. पहले this limit should be independent of a, then only you can use DUIS. Apply the DUIS. What you will get? Dabba by dabba a into cos lambda x upon x e raised to minus x minus e raised to minus bx. अभी क्या है? cos lambda x upon x does not depend on a, so you can take out this cos lambda x upon x as a constant which can be treated outside of the integration. And what we will left? We will left dabba by dabba a e raised to minus ax minus e raised to minus bx. Okay. Now tell me, what is the integration? What is the derivative of e raised to minus x with respect to a? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये एज इट इज रहेगा. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to minus ax into derivative of minus ax with respect to a. क्या आएगा? We will get minus x. And यहाँ पे e raised to minus bx, इसमें a का कोई टर्म ही नहीं है. So this is the constant term which derivative is equal to 0. So you will get cos lambda x upon x e raised to minus x into minus x outside minus 0. So ये जो x है and ये जो x है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. So let us move down. ठीक है. What will happen now? How to solve this integration? Any idea? There are two ways to solve this integration. Laplace. It is the Laplace transform of cos lambda x. This is the Laplace transform of cos lambda x with क्या लिख सकता हूं मैं?
What is the value of s over here? Cos of माइनस साइन आउटसाइड इज माइनस साइन बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस साइन आउटसाइड लिया, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है इट इज ऑफ द फॉर्म ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी, वो फॉर्म में, इसीलिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कॉस ऑफ लैम्डा ए एक्स। तो इसका लैप्लास क्या होगा? व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी? s upon s square plus e square। cos ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, s के जगह पे a लिखना है और a के जगह पे लैम्डा लिखना है। सो क्या हो जाएगा? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो हियर आपका वैल्यू क्या आएगा? s के जगह पे a लिखना है एंड a की जगह पे लैम्डा लिखना है। जस्ट वेट अ सेकेंड, तब तक आप सॉल्व करो इसको। What will happen next? We have to integrate because it is I dash of a, तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे I of a मिलेगा। So let us see further. This is the Laplace transform of cos lambda x with s is equal to a। उसका cos का वैल्यू फाइंड किया, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इंटीग्रेट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है? I dash of a है। This value is nothing but I dash of a। सो आई डैश ए को इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? आई ऑफ ए एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू डी ए। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? वी हैव टू राइट स्मार्टली 1/2 इंटीग्रेशन 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू डी ए। Now it is of the form f dash t upon f of t, क्योंकि a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2a। सो f dash upon f के फॉर्म में है तो क्या वैल्यू होता है इसका? log of that particular denominator। So if you have the integration of the form f dash x upon f of x dx, if you have integration in this form, what is the value? The integration value is log of f of x. Integration value is log of denominator. So log of denominator minus half into log of a square plus lambda square plus constant of integration. So this is your equation 2. So अभी आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? Let me write over here. ओरिजिनल इक्वेशन आपने क्या लिया था? I of a is equal to integration from 0 to infinity cos lambda x upon x into e raised to minus ax minus e raised to minus bx dx. This is your original integration. This is your original integration. इसको आपने 1 दिया था, राइट? तो अभी आपको 1 का वैल्यू कब सिंप्लीफाई होगा? When will we simplify? When I calculate I of b, जब मैं b के जगह पे a के जगह पे b रखूंगा, a के जगह पे b रखूंगा, तो ये जो पार्ट है वो 0 बन जाएगा। सो आपको 1 का जो इंटीग्रेशन आता है वो हमेशा याद रखना है, उसको 0 बनाना है कैसे भी करके। सो व्हाट यू विल पुट a is equal to b in the first integration. So what you will get? You will get instead of a you will get I of b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां जहां पे a है वहां पे आपको क्या रखना है? You have to put b cos lambda x upon x into
ई रेस टू माइनस बी एक्स, ए के जगह पे बी रखा, माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स, बी का वैल्यू चेंज नहीं करना है, इंटू डी एक्स। सो ये जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज जीरो, सो दिस इज बाय 1। एंड अगर मैंने 2 में रखा, ये जो 2 मिला है आपको यहाँ पे, क्या मिलेगा मुझे 2 में? इफ आई पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2, व्हाट डू आई गेट? यहाँ पे ए की जगह पे बी रखना है, दोनों जगह पे बी रखना है। आई ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस आई 1/2 लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी। अभी ये जो दो वैल्यू है, एक 1 से मिला और एक 2 से मिला, दोनों वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो व्हाट यू विल गेट? माइनस हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस, okay. So now what do I get? C का वैल्यू क्या मिला? log of b square plus lambda square. Then putting in 1 and 2, what do you get? I of a is equal to original integration, which is nothing but half log of a square plus lambda square plus c. C का वैल्यू रखा half into log of b square plus lambda square. So ये क्या होगा? Half is common. I will write over here. I will take half is common. Into bracket log of, पहले ये वाला टर्म लूंगा, दिस माइनस दिस, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म लिया। अभी इसका क्या है? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए अपॉन बी। इफ लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो वो डिवीजन बन जाता है, इसीलिए क्या होगा ये? इट इज हाफ ऑफ log of b square plus lambda square upon a square plus lambda square, bracket complete. This is your final answer. This is your final answer. You have evaluated this particular integration. Okay. ठीक है? Anyone has any doubt? This is you have to do. Now you are going to tell me how to solve this particular problem. I am not going to make any single step. You are going to solve this problem. ये very simple है. This is very simple. बोलो. You have to say what do I get right next. How should I solve this integration? Anyone?
गलत हुआ तो चलेगा, कोई First बात. we have to convert into I dash of E. But what is I of A first? What do I write I of A? I of A is whole of this 0. integration 0 to infinity e raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x dx. Okay. Now what she said, I have to convert this into I dash of A. What is I dash of A? It is integration 0 to infinity dabba by dabba A into e raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x. Yes, tell me now integration. Sorry, derivative क्या आएगा इसका? What is derivative of this term? पहले तो देखो कि 1 by x कॉमन है. 1 by x is outside of the integration. What do you write? Dabba by dabba a into e raised to ax minus e raised to minus bx. ओके, एक सिंप्लीफाई कर दिया, एक स्टेप मैंने कर दिया. अभी आप बोलो. 1 upon x dabba by dabba E minus x e raised to minus of x minus of 0 of derivative. ओके, सो उसने क्या किया अभी? व्हाट शी सेड दैट if I apply dabba by dabba a over e raised to minus ax, first write all this integration e raised to minus ax into what is the derivative of this minus ax with respect to a? We get minus x. This is called a chain rule. ओके, माइनस, अभी इसमें a का टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव विथ 0 इंटू डी एक्स हो गया. अभी एक्स एक्स विल क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट डू यू लेफ्ट विथ? दिस माइनस साइन आउटसाइड. यू विल लेफ्ट विथ 0 टू इंफिनिटी e raised to minus ax into dx. Okay, now solve this integration. क्या होगा इंटीग्रेशन का वैल्यू? Yes, tell me. What will E be the raised to value? minus of ax upon minus of x. नहीं, अभी विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. पहले हम लोग का डेरिवेटिव क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू a था, इसलिए x को बाहर निकाला. बट अभी क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू a करना है. सो इट इज e रेज टू माइनस ax अपॉन माइनस ऑफ a. द लिमिट्स आर फ्रॉम, यहाँ पे माइनस साइन इज आउटसाइड, 0 to infinity. Now put the limit. What is e raised to minus infinity? It is 0 minus e raised to 0 क्या होता है? 1 होता है. माइनस 1 अपॉन माइनस ए. ओके, सो ये कैलकुलेट किया. सो आपको ये माइनस माइनस प्लस हुआ, बट यहाँ पे पहले से ही माइनस साइन है आउटसाइड. सो इट इज माइनस 1 अपॉन ए. ये किसका वैल्यू मिला आपको? You will get this value as I dash of A. Now tell me what is I of A? Integrate both the side. Integrate both the side. It is minus of 1 upon A into dA. What is integration of 1 upon A? Log of A. So it is minus log of A. Since there are no limits, इसीलिए आप क्या पुट करोगे? You will put constant of the integration. अभी आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन में फिर से लिखता हूं. I of A क्या था आपका ओरिजिनली? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus ax minus e raised to minus bx अपॉन x इंटू dx. अभी कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे मुझे ये इंटीग्रेशन 0 मिल सकता है? ये आपका 1 था. दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2.
What value I should substitute? What value I should substitute in terms of a, so that this B. integration a is equal to B. हाँ करेक्ट. जब दोनों इक्वल होंगे a इज इक्वल टू b तो आपका डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 0 बन जाएगा. इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा. सो पुट a इज इक्वल टू b इन 1 and 2, दोनों में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. सो इफ आई पुट a इज इक्वल टू b, व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट i ऑफ b. i ऑफ b क्या मिलेगा मुझे? 0 टू इंफिनिटी e रेज टू a के जगह पे b रखना है, माइनस बी एक्स माइनस e रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन x इंटू डी एक्स. तो ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड में जब रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आई पुट इन 2, व्हाट डू आई गेट? आई ऑफ b इज इक्वल टू माइनस log b माइनस log ऑफ b प्लस c. सो ये क्या है? ये 1 से मिला, दिस इज फ्रॉम 2 से मिला. सो वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ log ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू 0. सो c का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग बट log ऑफ b. So this value you can put in equation 2 to get the value of I of A. I of A क्या मिलेगा आपको? What do you get I of A? Minus log A plus C. So if I put C का value, what do I get? Minus log of A plus C का value is log of B. Okay. So what do I get? It is log B minus log A. So log of B upon A. Log B minus log A is nothing but log of B minus A. So which is we wanted to prove. So यही अपने को प्रूव करना था. It is equal to log of B by A. So we have proved this by the DUIS. इसको और एक तरीके से किया जा सकता है जो मैं आपको बताता हूं. You can also prove that इंटीग्रेशन क्या था? 0 से लेके कौन सा था? इन्फिनिटी तक था शायद. e raised to ax minus, so you can write this as e raised to minus ax upon minus 1 upon x. Try to show that this is equal to log of minus log of a. Similarly, you can show that integration from 0 to infinity e raised to minus bx minus 1 upon x is equal to minus log of b, and then you can subtract. Then what you will get? Integration from 0 to infinity e raised to minus ax minus 1 minus e raised to minus bx. अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ a minus of minus log of b. So again you will get log of b by a. So from this also you can also do, ये सभी इसमें यूज होगा. मतलब ऐसा मॉडिफाई करो कि जिसको आपको फाइनल आंसर जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन में जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए. ओके, सो दिस यू कैन also do in case of 2 parameters. So that is what I wanted to say. Let us see one more example.
example with no parameter. Consider this particular thing. Integration of sin x upon x is equal to pi by 2. How to solve this? इसमें तो पैरामीटर ही नहीं है. How to solve this particular problem? If this is having no parameter, I will include the parameter. E raised to minus ax into sin x upon x dx. I will evaluate, instead of this original integration, I will evaluate this integration. And after evaluating this integration, I will put a is equal to 0. क्यों a is equal to 0 क्यों put करूंगा? क्योंकि a is equal to 0 put किया तो e raised to 0 1 होता है. So 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन को. So what I will do, I will evaluate this integration and then I will put a is equal to 0. Okay. So example with no parameter will converted into the examples with parameter. Understood this concept? Example with no parameter will be converted into the concept examples with parameter. में convert करना है. Okay. So let us solve this particular integration. I wanted to solve integration from 0 to infinity sin x upon x dx is equal to pi by 2. This I wanted to show. Now consider वो मैंने क्या बोला आपको कि अगर वो पैरामीटर में नहीं है तो हम उसको पैरामीटर में लाएंगे. Let I of a is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus ax into sin x upon x dx. Give this equation number 1. Now tell me what is dux says. I have to find I dash of a. Regularly जो करते हो करो. Integration from 0 to infinity dabba by dabba a into e raised to minus ax. ये as it is रहेगा sin x upon x, which is independent of a. You can take this out of the integration. Yes, tell me what is the derivative with respect to a. Anyone? Are you there? What is the derivative of this particular? E raised to minus of ex minus of x. Into minus of x. Into minus of x dx. अभी मुझे बताओ x will get cancel out. What do you left with? Minus of integration 0 to infinity e raised to minus ax into sin x dx. अभी बताओ मुझे इसका what is the value of this integration? Laplace of sin x. This is minus times Laplace of sin x. s का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? What is the value of s? What is sin x का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होता है?
साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? e upon square plus e square. सो इट इज माइनस, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 1 है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1. सो माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 मिला आपको, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 मिला. अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन नाउ? Therefore, integrating both the side, what you will get, I of a is equal to minus of the integration 1 upon a square plus 1 into dA, which is nothing but minus of tan inverse of x, sorry, tan inverse of a plus c. 1 upon x square plus 1 इंटीग्रेशन इज माइनस tan square of x. तो यहाँ पे माइनस साइन आउटसाइड है, इसीलिए दिस यू कैन पुट एज 2. नाउ व्हाट आई कैन राइट, कौन सा वैल्यू पुट करना पड़ेगा a का जिससे मुझे इंटीग्रेशन फट से सॉल्व होगा? कौन सा वैल्यू a का पुट करना पड़ेगा जो इंटीग्रेशन को 0 बनाएगा? a का वैल्यू पुट करना है आपको. एनीवन? What value I can put a का वैल्यू? When this term e raised to minus ax 0 कब होता है? कौन सा टर्म वैल्यू के लिए e का वैल्यू 0 होता है? Infinity. e raised to माइनस इंफिनिटी. सो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है तो a को हम लोग इंफिनिटी बना देंगे. सो पुट a इज इक्वल टू इंफिनिटी इन 1 एंड 2, पॉजिटिव इंफिनिटी. हाँ, सो 1 क्या बन जाएगा, आई ऑफ ए के जगह पे हमने रखा इंफिनिटी, आई ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e raised to minus infinity into whatever that is sin x upon x dx. Okay, so what is this integration 0 to infinity into 0 dx? What is the value of 0? Integration is 0, so it is equal to 0. So ये फर्स्ट से मिला. What is second? सेकेंड में जब मैं इंफिनिटी रखूंगा तो क्या मिलेगा, आई ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस सी एज इट इज. व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी? पाई बाई 2. tan ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. जब cos 0 होता है ना तो tan क्या होता है, इंफिनिटी को जाता है. सो cos 0 कब होगा, पाई बाई 2 पे, इसीलिए tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाई 2. सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज फ्रॉम द सेकेंड. फर्स्ट से मिला आई ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सेकेंड से मिला आई ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू सी माइनस पाई बाई 2. दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस सी is equal to 0. This implies that c is equal to minus pi by 2, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2. Put c is equal to plus pi by 2 in what? Equation 2. What do you get? I of a equal to क्या है, माइनस tan इनवर्स ऑफ a minus tan inverse of a plus c is equal to pi by 2. But what is I of a? I of a is a integration from 0 to infinity
e raised to minus ax into sin x upon x dx. This is equal to c. This is equal to what I can write, पाई बाई टू प्लस में है तो पाई बाई टू पहले लिखता हूं, माइनस tan इनवर्स ऑफ ए. अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए जस्ट साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसीलिए मुझे e रेज टू ए एक्स को 1 बनाना है. सिंस आई वॉन्ट साइन एक्स अपॉन एक्स, आई वॉन्ट टू मेक दिस e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. एक मिनट, मेरा कर्सर कहाँ है, ठीक है. सो व्हाट आई विल गेट, पुट a is equal to 0 on both the sides. Put a is equal to 0 on both the sides. What is e raised to 0? e raised to 0 is 1. So लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा. सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स sin x upon x dx is equal to pi by 2 minus tan inverse of 0. What is tan inverse of 0? Tan inverse of 0 is equal to 0. So just आपको क्या मिलेगा, pi by 2. So this is how you will solve this integration. एक और तरीका है जो हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, वो sin t अपॉन t में होगा शायद. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी sin t अपॉन t dt. इसके लिए हमने क्या किया था, सेम e रेज टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया था और बोला था कि वी विल फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म sin t अपॉन t. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म sin t अपॉन t निकाला तो आपको मिलेगा पाई बाई टी माइनस ए tan इनवर्स का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, और फिर आप बोलोगे कि उसको कि इट इज द s इज इक्वल टू जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें s का वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा पाई बाई 2. वो लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी यही सब सेम तरीका यूज किया है, सेम आप इधर कर सकते हो. डी से भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. लेट्स गो बैक. Next is very important. This is called as Leibniz rule. Okay. So Leibniz rule is the last part of this chapter. What is Leibniz rule says कि जब आपका पैरामीटर पे डिपेंड होता है, अभी तक आपका क्या था, I of t जब हम लेते थे, it is integration from a to b. This a and b are doesn't depend on the value of t. But अगर आपका वैल्यू t पे डिपेंड करता है, दैट इज हियर आई ऑफ t. यहाँ पे देखो क्या है, फंक्शंस है, लिमिट्स आर द फंक्शंस ऑफ t. मतलब यहाँ पे आप ऐसा इंटीग्रेशन ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, t टू t स्क्वायर. ओके, सो आई ऑफ t इज इक्वल टू t टू t स्क्वायर. मतलब आपके जो लिमिट्स है वो भी फंक्शंस है विच डिपेंड्स ऑन t. देन यू कैन नॉट यूज नॉर्मल DUIS. जो नॉर्मल रूल था DUIS का, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैन बी इंटरचेंजेबल, वो आप यूज नहीं कर सकते इसमें. तो क्या करना है आपको, आपको लेबनिज रूल अप्लाई करना है. सो लेबनिज रूल क्या बोलता है कि आप यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज, जैसे आपका ओरिजिनल लेबनिज रूल है, दैट इज डी बाई डी टी विल गो इनसाइड एंड विल बिकम पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी एक्स. बट अभी क्या होगा, यू विल पुट एफ एक्स टी में एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखोगे. एक्स की जगह पे अपर लिमिट क्या आएगा, बी ऑफ टी आएगा. टी एज इट इज रखोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको ये तो रूल पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अभी क्या रखोगे, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रखोगे. लोअर लिमिट इज ए ऑफ टी
कॉमा टी, टी एज इट इज, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पे आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, ए ऑफ टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब मेरा क्या है कि अगर मुझे ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल टी टू टी स्क्वायर, तो पहला तो टर्म एज इट इज आएगा, आपको तो कैलकुलेट करना आता है। सेकेंड टर्म में मैं क्या रखूंगा, एफ ऑफ टी स्क्वायर कॉमा टी, क्योंकि अपर लिमिट टी स्क्वायर है तो आई विल पुट अपर लिमिट टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टी स्क्वायर क्या आएगा 2t माइनस सेकेंड लिमिट क्या आएगा, आई विल पुट x के जगह पे t ओनली, t कॉमा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या आएगा 1 आएगा। अभी यही रूल जो है इसका जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म मतलब क्या, मैं ये रूल ना सबके लिए यूज कर सकता हूँ। मतलब फर्स्ट जब मैं रहता था, जब मेरा लिमिट्स a टू b रहता था तो मेरा क्या होता था, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मेरा ये जो कंपोनेंट है db by dt, since b is a constant, will get this as 0, will get a as 0. So this is the original form. ये जो लेबनिज रूल है वो ओरिजिनल फॉर्म है, और उसको जब आपका ये कांस्टेंट रहता है लिमिट्स, या फिर डिपेंड नहीं करता है, दोनों का वैल्यू जब 0 आता है तो आप दो, ये जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है, ये जो पार्ट है सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, वो आप लेते नहीं थे, आप जस्ट फर्स्ट वाला पार्ट ही लेते थे। बट अभी हम लोग इसको मोर जनरली सॉल्व करेंगे व्हेन योर इंटीग्रेशन लिमिट्स आर functions of a parameter. When your integration limits are function of the parameter, what you will going to do, you are going to use Leibniz rule. You are going to use Leibniz rule. Okay, is this clear? इसका प्रूफ आपको पूछेंगे नहीं, जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस लेब्निज रूल, आपको सिर्फ अप्लाई करने आना चाहिए। सो एक एग्जांपल देखते हैं और स्टॉप करते हैं, ठीक है। कंसिडर फॉर एग्जांपल यहां पे बोला है डी बाई डी ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए स्क्वायर टू ए कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर। अभी आप मुझे बताओ इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, सिंस आपके जो लिमिट है ए स्क्वायर डिपेंड्स ऑन ए इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए, तो आप क्या करोगे, दोनों जो इंटीग्रेशन के लिमिट है वो इस पे डिपेंड करते हैं, तो मैं इसका यूज करूंगा, ये सेम चीज का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, फर्स्ट क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी द फर्स्ट, एज इट इज ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए स्क्वायर टू ए डैबा बाय डैबा ए इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्स स्क्वायर, एज इट इज रखूंगा कॉस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फर्स्ट तो पार्ट आसानी से हो गया, डी वाई एस आपका ओरिजिनल डी वाई एस है, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी कॉमा टी, मतलब x के जगह पे मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज कॉस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्यों आया, एक्स स्क्वायर है इसीलिए ए स्क्वायर आया, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस, अभी मेरा क्या है, कॉस ऑफ x के जगह पे मैं अभी a स्क्वायर रखूंगा, लोअर लिमिट रखूंगा, दैट इज a इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर विल बी a रेज टू 4, a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, डी बाई डी ए ऑफ द लोअर लिमिट दैट इज ए स्क्वायर। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसका वैल्यू मैं क्या करूंगा 2a सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट, देन आई विल गेट द फाइनल आंसर। इंस्टेड ऑफ दिस d बाई डी ए स्क्वायर, उसके जगह पे 2a रखूंगा, इसके जगह पे डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा 1 आएगा, सो फाइनल आंसर मैं लिख सकता हूँ। सो लेट अस राइट द फाइनल आंसर ओवर हियर, ओके। First as it is किया, then derivative of a minus a square square, derivative of a square, derivative of a square 2a, यहाँ पे क्या रहेगा, derivative of a 1 रहेगा,
तो इसको सिर्फ आपको ये करना है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ax स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ax स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू a, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, प्लस cos a क्यूब इंटू डेरिवेटिव इज 1 माइनस cos a रेज टू 5 इंटू 2a, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2a. सो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस cos a क्यूब minus 2a cos a5. This is your answer by the Leibniz rule. Okay, understood this? There is one more example, then we can start a new chapter in the next lecture. That is that thing is called as error function and complementary error function. So उसका properties है, 6-7 properties रहेगा, उसके ऊपर 2-3 examples रहेगा बस. प्रॉपर्टीज के प्रूफ आते हैं जनरली एरर फंक्शन में, डिफाइन करने आएगा व्हाट इज एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा. सो वी विल स्टॉप हियर. ओके, लेट मी जस्ट डाउनलोड द अटेंडेंस, देन यू कैन लीव.